Hello friends, welcome. Today we will going to start a very important chapter in your class 9 syllabus of science, that is motion. Motion is the very first chapter, the beginning of physics syllabus for your class 9th. Okay, so this chapter has its physical significance, it has some physical importance in your life, and as well as it is most important, it is the basic of whatever the physics that you are going to study in higher classes, in let's say 10th or 11th or 12th or in your graduation and anything else. So that's why please focus on this chapter, please try to understand each and every concept of this chapter properly. Okay, try to if you are not getting the concept in one go, just repeat the lecture again and again, so you will be able to grasp the concept. Okay, so let's start this chapter, a very important chapter, that is motion. First of all, we will understand what exactly is meant by motion. Just wait for a second and think that what exactly, how will you define motion? If I ask you what is motion, okay, so what answer should you give? What will be your answer? That what exactly is motion? Okay, you might be thinking many different answers, that we have seen the motion every day, we are doing motion. For example, I am standing here, I am moving my hand, so this is kind of motion, and various other examples will come to your mind that what exactly is motion. But even in that case, it would be a bit confusing to define the exact definition. It would be a bit difficult for you to define what exactly is motion. How will you define the term motion? Okay, because you know what is motion, you understand it very well, you can observe it in your surrounding, but still it would be difficult for you to define it, okay, in some particular definition form, in a single sentence form. Okay, so we will going to understand that concept. Please listen it carefully. Motion means movement. Okay, in a single word I will say motion means movement. Okay, so first thing we will write about motion is motion means movement. This is how we can define the motion in single line. Okay, this is single line. Now, for example, I am standing here right now in front of you. Let's say there is a dot here, and I am standing near this dot. Okay, I am standing just close to this dot. You can see I am standing here, but if I move a bit like this, and I now I am standing at this position. So what you will say that I have moved from that point to this point. So what I did a movement, or I will say I did motion. Okay, I was in motion to move from that point to this point. But think about it, how you determine, how you can say that I have moved. On what basis you can say that I have done some motion, I have moved from my that place. It's just because you can see there is a dot here, I placed the dot here, I was standing close to this. पहले मैं इस डॉट के बिल्कुल पास में खड़ा था, लेकिन अब मैं जब इस तरह से मोशन करके यहाँ पहुँच गया, मूव करके यहाँ पहुँच गया, सो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि मेरी डॉट से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है मेरा और डॉट का, वो डिस्टेंस बढ़ गया. ओके, आई एम अ बिट फार अवे फ्रॉम दिस डॉट. So in this way you will say that previously I was close to the dot, but now I have moved a bit away from it, hence I have done motion, hence I have done some movement. So technically, in technical way, we can define motion means change in position of an object with respect to some reference point. Now try to understand this definition very carefully. What I said is motion means change in position. This is the most important line. Motion means change in position of an object, of one object with respect to some reference point. Now this is again
the important term reference point. Now why this definition is correct about motion, what exactly this definition wants to say. As I told you, I made a point like this, okay. Now I am standing near this point like this, so you saw me that I am standing here, okay. आपने मुझे देखा कि मैं इस पॉइंट के बिल्कुल करीब में खड़ा हूं, लेकिन जैसे ही मैं इस तरह से थोड़ा सा ट्रैवल करा, थोड़ा सा मूवमेंट करा और इस तरफ पहुंच गया, थोड़ा सा मोशन करा और इधर पहुंच गया, यू कैन सी कि मेरा जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से मेरी दूरी, वह दूरी बढ़ गई है, ओके. द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. सो आई विल से दैट दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट. दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट. आपने इस पॉइंट के माध्यम से देखा कि मैं पहले पॉइंट के करीब खड़ा था, अब मैं पॉइंट से दूर चला गया, सो इट मींस मैंने मूवमेंट किया, मैंने मोशन किया. So this is how we can define the motion, okay. I was close to this point, but now since I am moving, so I am in motion, my distance from this point is getting changed, okay. And इसी चीज को हमने कहा change in position. You can see it very clearly. मेरी position पहले point के बिल्कुल पास में थी, let's say यहाँ पे, लेकिन अब मेरी position let us say यहाँ पर shift हो गई है. So it means मेरी position में change हुआ है. तो जब भी किसी object की पोजीशन में चेंज होगा, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के नजरिए से देखने पे अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होगा तो हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट हैज डन मोशन, ओके. दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द मोशन, ओके. नाउ व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट, सो आई विल से रेफरेंस पॉइंट, it is the point from which the change in position is observed. यह वह पॉइंट है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसे ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट से आप घर पे हैं, सो आप घर से स्कूल जाते हैं, तो स्कूल को हम लेट अस से मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ओके. तो जब आप घर पे थे तब आप स्कूल से काफी दूर थे, लेकिन जब आप स्कूल पहुंच गए तो आप स्कूल के बिल्कुल करीब आ गए. सो व्हाट वी कैन से कि आपने इस दौरान मोशन किया, क्योंकि पहले आप स्कूल से काफी दूर थे, अपने घर पे थे, लेकिन अब आप स्कूल में हैं, ओके. तो यहां पे क्या हुआ, आपकी पोजीशन में चेंज आया. तो ये चेंज आने की वजह से, ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज आने को हम कहेंगे कि डेफिनेटली आपने क्या करा, आपने मोशन किया, ओके. मोशन किया, मूवमेंट किया, इसे ही हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे एज मोशन, ओके. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके. लेट्स से फुटबॉल की बात करते हैं. एक पर्सन के पास फुटबॉल है, उसने किक करा, दूसरे पर्सन के पास चला गया, उसने किक करा, तीसरे पर्सन के पास चला गया. तो अब हम किसी भी एक पर्सन को रेफरेंस मान ले, ओके. लेट्स से 11 प्लेयर्स, लेट्स से 20 प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके. सो इन दोस 20 प्लेयर्स किसी भी एक प्लेयर को रेफरेंस मान ले, तो कभी बॉल उसके पास में होगी, कभी बॉल उससे दूर होगी. दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे कि बॉल मोशन कर रही है, ओके. बॉल का मूवमेंट हो रहा है, बॉल कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है, बिकॉज बॉल की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से चेंज होती जा रही है. बॉल की पोजीशन कैसी हो रही है, रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो रही है. इज इट क्लियर? ओके. इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ मोशन. नाउ अब थोड़ा सा हम इसे और एक्सटेंड करते हैं, इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप, ओके. यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप. You find that a bus is coming towards you, okay. Bus is coming towards bus stop and it moves in the straight way, okay. For example, this is the bus stop and I am standing here and a bus comes in front of me and it goes away, okay. A bus goes away. Now what I can say, previously the bus was far away from the bus stop, it came to the bus stop. It means if my bus stop is the reference point, the position of the bus is changed continuously. The position of the bus is getting changed. It was far away, पहले काफी दूर थी, फिर और पास आई, फिर धीरे और पास आई, फिर पास आई, फिर पास आई, फिर एकदम बस स्टॉप पे आके बस रुकी एंड देन इट मूव्ड. तो बस क्या हुआ, बस की पोजीशन फिर से चेंज होती चली गई.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस ने मूवमेंट किया, बस ने मोशन किया। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि बस इज मूविंग। बस क्या कर रही है? बस कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है। ओके, बस मूव कर रही है। अब जरा सोचिए, बस और आपके बीच में दूरी जो बढ़ती जा रही है, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, सो आपको दिख रहा है कि बस इज डूइंग सम मोशन। बस क्या कर रही है? मोशन कर रही है। बट इमेजिन टू स्टूडेंट्स, टू ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इनसाइड द बस। आप उन दो दोस्तों को इमेजिन कीजिए जो बस के अंदर बैठे हुए हैं। जब दो दोस्त बस के अंदर बैठे हैं, बस कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो क्या आप दोनों को दिखेगा कि आप मोशन कर रहे हैं? नहीं। यू विल फाइंड कि जब आप दोनों पर्सन्स बस के अंदर बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, एक सीट पर बैठे हैं, बिल्कुल आसपास में बैठे हैं, भले ही बस चल रही है, भले ही बस मोशन कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा कि आपका फ्रेंड या आपका कोई पास वाला फ्रेंड मूव कर रहा है। ओके, आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि सारे पैसेंजर्स जो भी बस में हैं वह सभी रेस्ट पर हैं, वह सभी रुके हुए हैं, वह सभी बैठे हुए हैं, उनका कोई मोशन नहीं हो रहा। लेकिन वहीं से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को दिखेगा कि बस मोशन कर रही है, बस मूव कर रही है, और उसको यह भी दिखेगा कि पैसेंजर्स भी साथ में मूव कर रहे हैं। ओके, पैसेंजर्स आर ऑल्सो मूविंग। ओके, नाउ इमेजिन वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ पे हैं, अभी हम अर्थ पे रहते हैं। ओके, आपका घर है, आपका घर है, आपके पास में एक और घर है, उसके पास में एक और घर है। सो जस्ट इमेजिन, क्या आपका घर और आपके पास वाले घर में से आपने किसी घर को मूव करते हुए देखा है? नहीं। हमारा घर जहां है वहीं पे रहता है, उसे हम कहते हैं रेस्ट। ओके, द होम, द हाउस इज एट रेस्ट। ओके, आपके पास वाला घर भी कैसा है? रेस्ट पे है। आपको यह दिखेगा कि ना तो आपका घर चल रहा है, ना आपके घर के पास वाला घर चल रहा है, मतलब घर कोई सा भी मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, जो एस्ट्रोनॉट अर्थ के बाहर है, ओके, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में चक्कर लगा रहा है, ओके, व्हाट ही विल फाइंड कि अर्थ तो कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है, अर्थ इज मूविंग लाइक दिस। ओके, ऐसा मोशन हो रहा है अर्थ में। सो व्हाट ही विल फाइंड कि आपका घर उस एस्ट्रोनॉट को मोशन करता हुआ दिखाई देगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो जस्ट इमेजिन कि ये मोशन कैसा कॉन्सेप्ट है। आप अर्थ पे खड़े होकर अपने घर को देखेंगे तो आपका घर रुका हुआ दिखाई देगा, लेकिन वही वो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में घूम रहा है, वह जब आपके घर को देखेगा तो तब उसको आपका घर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। सो व्हाट वी कैन से कि एक पर्सन के नजरिए से एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, दूसरे पर्सन के नजरिए से वह ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो किसी के नजरिए से देखने पे मोशन हो रहा है, किसी के देखने से मोशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव क्यों? बिकॉज अलग अलग लोगों के नजरिए से देखने पे मोशन अलग अलग दिखाई देगा। ओके, अलग अलग पर्सन जब मोशन किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो किसी के नजरिए से वह ऑब्जेक्ट मूव करता दिखेगा, किसी के नजरिए से वह ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन अ ट्रेन। एक ट्रेन चल रही है, ओके, एक ट्रेन मूव कर रही है। आप ट्रेन के बाहर किसी पेड़ के पास खड़े हुए हैं। क्या पेड़, आप जिस पेड़ के पास खड़े हैं, ओके, आपको क्या पेड़ मोशन करता दिखाई देगा? नहीं। आपको दिखेगा कि पेड़ जहां है वहीं का वहीं रुका हुआ है। लेकिन ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, एक ट्रेन जो मोशन कर रही है, मूव कर रही है, उस व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? उस व्यक्ति को दिखेगा कि जो पेड़ है, जो ट्री है, वो पीछे की तरफ भाग रहा है। जस्ट इमेजिन, आपको भी ट्रेन में बैठे थे और आपने देखा था, जब आप खिड़की के बाहर देखते हैं, यू विल फाइंड दैट ट्रेन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और you will find that the tree and all the other surrounding, okay, the birds, the cloud, everything is moving backwards. ऐसा आपको इमेजिन होता है, ऐसा आपको प्रतीत होता है कि जो ट्री है वह पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्लाउड्स है वो पीछे जा रहे हैं, बर्ड्स हैं वो पीछे जा रही है, ह्यूमंस बाहर जो घूम रहे हैं वह सब पीछे जाते जा रहे हैं।
आपको दिख रहा है कि वह मोशन कर रहे हैं। लेकिन इमेजिन आपके फादर या आपके मदर या आपके फ्रेंड आपके सामने वाली सीट पर जब बैठे हैं, तो ट्रेन चल रही है, आप इधर बैठे हैं, आपके सामने आपके फ्रेंड बैठे हैं, यू विल फाइंड कि आपका फ्रेंड, आप दोनों रुके हुए हैं। आपको दिखेगा कि आपका फ्रेंड मोशन नहीं कर रहा, ट्रेन जरूर मोशन कर रही है लेकिन आपका फ्रेंड मोशन नहीं कर रहा। बाहर जो पेड़ लगा है वह पीछे भागता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए होता है, इट्स बिकॉज द मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्कूल बस, ओके। लेट्स से कि यह एक स्कूल बस है। इस स्कूल बस में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेट्स से ए एंड लेट्स से बी। इस स्कूल बस में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक ए है और एक बी है, और यह बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में ऐसा मोशन कर रही है। लेट्स इमेजिन कि यहां पर एक बस स्टॉप है, ओके, दिस इज अ बस स्टॉप, दिस इज अ बस स्टॉप, एंड यहां पर एक पर्सन खड़ा है, दिस इज सी, ओके। ए और बी बस के अंदर बैठे हैं, वाइल सी बाहर खड़ा हुआ है। नाउ जस्ट इमेजिन कि सी की जगह पे आप खड़े हैं, ओके, आप यहां पे खड़े हैं बस स्टॉप पे और यहां से बस आ रही है। जब ये बस आपकी तरफ आ रही है तो आपको क्या दिख रहा है कि बस कंटिन्यूअसली आपके पास आती जा रही है। धीरे धीरे बस की पोजीशन क्या हो रही है, पहले बस यहां थी, फिर यहां पे हुई, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसा करते करते बस स्टॉप पे आई। तो बस स्टॉप हमारा क्या है? बस स्टॉप है हमारा रेफरेंस पॉइंट, एक वह पॉइंट जहां से हम मोशन को देख रहे हैं, जहां से हम बस को मूव करते हुए देख रहे हैं, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। सो यहां पर जैसे जैसे बस पास आती जाएगी मुझे दिखेगा कि हाँ बस में मोशन हो रहा है और बस धीरे धीरे मेरी तरफ आती जा रही है। सो व्हाट आई विल से दैट बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। मैं कहूंगा कि जब सी पर्सन इस बस को देख रहा है तो सी को दिखता है कि ये बस मोशन कर रही है, ये बस मूव कर रही है, तो बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन सी, ओके। सी पर्सन के रिस्पेक्ट में बस मोशन करती है। सिमिलरली अब जब आपको बस पास आती हुई दिखेगी तो क्या ये ए और बी भी मोशन करते दिखाई देंगे? जस्ट इमेजिन आप एक बस को देख रहे हो, बस में पैसेंजर्स बैठे हैं, जब बस मूव करती है तो पैसेंजर्स भी बस के साथ साथ मूव करते हैं। सो अगर आपको बस मोशन में दिखती है इसका मतलब पैसेंजर्स भी आपको मोशन में दिखाई देंगे। सो आई विल से, जैसा यहां पे हमने लिखा बस जो है वो सी के रिस्पेक्ट में मोशन है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है सी के नजरिए से देखने पे कि सी को क्या दिख रहा है, बस मूव कर रही है या नहीं कर रही, दैट इज द मोशन, ओके, दैट इज द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, विथ रिलेशन टू। इसी तरह से आप जब ये सी पर्सन ए और बी को देखेगा तो सी विल फाइंड कि ए और बी भी मूव कर रहे हैं। सो आई विल से ए एंड बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो सी के नजरिए से ए और बी भी मोशन करते दिखाई देंगे, तो बस भी मूव करती दिखाई देगी और ए और बी जो पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन करते दिखाई देंगे, ओके। नाउ इमेजिन द इनवर्स केस। अब आप उल्टा केस इमेजिन कीजिए। अब मान लीजिए आप बस के अंदर बैठे हैं, नाउ यू आर सिटिंग इनसाइड द बस। जस्ट इमेजिन आप अपनी स्कूल बस में बैठे हैं। जब आप स्कूल बस की खिड़की से बाहर देखेंगे, जब आप स्कूल बस की खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? जस्ट इमेजिन, आपको दिखाई देगा कि जो रोड पे लोग चल रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं रोड पे, दे आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका बस ऐसा जा रहा है तो आपको दिखेगा कि लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपको यह दिखाई देगा कि आप तो रुके हुए हो लेकिन लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, ओके। सिमिलरली यहां पर जब ये ए जो स्टूडेंट है, ये ए स्टूडेंट बाहर की तरफ इस बस स्टॉप को देखेगा तो ए को दिखाई देगा कि ये बस स्टॉप उसकी तरफ आ रहा है। जब ये सी पर्सन बस को देख रहा था तब क्या दिख रहा था कि बस सी की तरफ आ रही है,
लेकिन ए को क्या दिखेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं लेकिन ये बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है। जस्ट इमेजिन, इस तरह से हम मोशन को कंसेप्चुअलाइज करते हैं कि आपको दिखेगा, एक बार जरा माइंड लगाने की कोशिश कीजिएगा, जब आप बस में बैठे हैं आपको दिखेगा कि बस तो रुकी है लेकिन आसपास की चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, इस तरह का आपको इमेजिनेशन होगा। तो हम कहेंगे जब हम ए के नजरिए से देखते हैं तो ए एक पैसेंजर है, वो बस में बैठा है, उसे नहीं पता चल रहा कि बस चल रही है, उसे क्या दिख रहा है कि मैं तो रुका हुआ हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं, ये बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है। सो आई विल से सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, सी, ए को क्या दिखेगा कि सी मूव कर रहा है, सी को क्या दिखेगा कि ए मूव कर रहा है। ओके, ऐसा होता है। आप बस में बैठे हैं तो आपको दिखता है कि आसपास के लोग मूव कर रहे हैं, आप जब बाहर खड़े होते हैं तो आपको दिखता है कि बस मूव कर रही है। ओके, जस्ट इमेजिन दिस, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेप्चुअलाइज दिस। सिमिलरली सी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है। अच्छा, ए और बी साथ में बैठे हैं बस में। ओके, तो ए और बी मतलब आप और आपका फ्रेंड बस में साथ में बैठे हैं, तो आप दोनों के बीच में जो पोजीशन है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हो रहा, भले ही बस मूव कर रही है लेकिन आपको नहीं दिख रहा कि आप और आपका फ्रेंड मोशन कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होगा। आप और आपका फ्रेंड जब बस में बैठे होंगे, बस चलती रहेगी, देन यू विल नॉट बी इन मोशन। तो मैं कहूंगा सी अगर ए के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो सी जो है वो बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन में होगा। सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। दोनों ही व्यक्तियों को जो बस में बैठे हैं इन्हें दिखाई देगा कि सी उनकी तरफ आ रहा है, सी उनकी तरफ मूव कर रहा है। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि मोशन कैसा कॉन्सेप्ट है। वो देखता है कि ये चल रहा है, ये देखता है कि वो चल रहा है, असल में क्या हो रहा है, असल में तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अगर हम बस में बैठे होंगे तो हमें दिखेगा सी चल रहा है, अगर हम बाहर खड़े होंगे तो हमें दिखेगा ए चल रहा है। मतलब सच्चाई कहीं नहीं है, सब कुछ झूठ है। ऐसा मान लीजिए कि ए को दिखता है सी चलता है, सी को दिखता है ए चलता है, मतलब एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि चल कौन रहा है। जब तक हम ये नहीं बता सकते कि हम बैठे कहाँ हैं, क्या हम ए के साथ बैठे हैं, क्या हम सी के साथ बैठे हैं, आखिर किसके साथ बैठे हैं, जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है। इज इट क्लियर? नाउ इसी तरह से जैसा कि हमने लिखा सी जो है वो मोशन में है ए और बी के रिस्पेक्ट में। अब ए और बी आपस में कैसे हैं? आप और आपका फ्रेंड बस में बैठे हैं, बस भले ही मूव कर रही है लेकिन आपको क्या दिखेगा? दैट यू एंड योर फ्रेंड आर एट रेस्ट, यू एंड योर फ्रेंड आर एट रेस्ट। आप दोनों मोशन नहीं कर रहे, आप दोनों मूवमेंट नहीं कर रहे क्योंकि आप साथ में बैठे हैं, आप एक ही बस में बैठे हैं। तो बस के साथ ए भी मूव कर रहा है, बस के साथ बी भी मूव कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन, बस जब आप एक स्कूल बस में बैठे रहते हैं, स्कूल बस मूव करती है तो आपके आसपास के लोग आपको रुके हुए दिखाई देते हैं कि हाँ ये बैठे हैं, दे आर एट रेस्ट। ओके, तो हमें दिखेगा ए इज नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, और बी इज not in motion with respect to C। A को दिखेगा कि B रुका है, B को दिखेगा A रुका है, लेकिन असल में कौन रुका है we don't know। ओके, नाउ अब ये जो अलग अलग तरह से हमने मोशन को लिखा कि अलग पर्सन के देखने से, अलग पर्सन के नजरिए से मोशन अलग तरह से दिखाई देता है। नाउ why we can how we can understand this concept, how we can judge ki who is in motion and who is not in motion? What I will say, I will define a term, a very important term, that is frame of reference. A very important term, frame of reference. What is meant by frame of reference? Frame of reference means the environment from which motion is observed. Okay, the environment
फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व, वह एनवायरमेंट जहां से हम मोशन को देख रहे हैं, जहां से हम आसपास की चीजों को देख रहे हैं, उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पर सी बस स्टॉप पे खड़ा है, तो सी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये बस स्टॉप, ये एनवायरमेंट, ये सराउंडिंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी। तो सी जिस रेफरेंस में खड़ा है वह कहां है? वह अर्थ पे है, वह रुकी हुई है, वह अर्थ पे ही है, अर्थ के साथ ही मूव कर रही है, अर्थ पे रुकी हुई है। ओके, हमें ऐसा दिखेगा कि बस स्टॉप रुका हुआ है। अगर हम सी के पास खड़े रहेंगे तो हमें दिखेगा कि सी रुका हुआ है। अगर हम बस में बैठ जाएंगे तो हमें दिखेगा कि ए और बी रुके हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी अगर बस स्टॉप पे खड़ा है तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर हम भी बस स्टॉप पे खड़े हो जाएंगे तो हमारा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा? बस स्टॉप। तो इसीलिए हमें सी भी रुका हुआ दिखाई देगा। नाउ ए और बी कहां पे है? ए और बी बस के अंदर है, तो ए और बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बना? ये बस। तो अगर हम बस में बैठ जाएं तो हमारा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? ये बस। तो इसीलिए हमें क्या दिखेगा कि ए रुका हुआ है, बी भी रुका हुआ है। तो जब तक हम सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सारी चीजें हमें रुकी हुई दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त अपने घर पे बैठकर इस लैपटॉप या कंप्यूटर में इस लेक्चर को देख रहे हैं। सो आपको दिख रहा है कि आपका जो स्क्रीन है, ओके, आपका जो स्क्रीन है लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, यह स्क्रीन रुका हुआ है, दिस इज एट रेस्ट। आपके आसपास की चीजें सारी रुकी हुई हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में घूम रहा है, क्या उसको भी आप रुके हुए दिखाई दे रहे हो? नहीं, उसको तो दिख रहा है कि अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के साथ आप भी मूव कर रहे हो। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये अर्थ। तो आप अर्थ पे हो तो अर्थ पे सारी चीजें आपको रुकी हुई दिखाई दे रही हैं इस अर्थ के सरफेस पे। ओके, लेकिन एस्ट्रोनॉट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वह स्पेस। तो स्पेस में क्या दिख रहा है उसे? कि जो जैसे अर्थ है तो स्पेस रुका हुआ है और अर्थ उसमें ऐसा मोशन कर रही है, अर्थ उसमें मूव कर रही है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोशन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मोशन। ये तीन टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चेंज इन पोजीशन, दूसरा रेफरेंस पॉइंट और तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इसे याद रखिएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए, देन हम कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को विद सम न्यू टॉपिक, विद न्यू टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर मोशन।